سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال 6 JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں نے انڈونیشیا کے صدر کا شاندار استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے صدر کو فضائی سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے اپنے حصار میں لے کر منفرد انداز میں خوشامدید کیا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جب ان کا جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو پاک فضائیہ کی پہچان ہماری شان JF-17 تھنڈر نے 6 طیارے جنہوں نے استقبال کیا۔ 6 JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں نے انڈونیشیا کے صدر کا شاندار استقبال کیا اور پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے انڈونیشین صدر کو فضائی سلامی پیش کی اور پاک فضائیہ کے طیاروں نے اپنے حصار میں لے کر منفرد انداز میں انہیں خوش آمدید کہا۔ یاد رہے کہ انڈونیشین صدر 2 روزہ دورے پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت نے ان کا استقبال کیا اور یہ اس وقت کے ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جب ان کا طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا اور پاک فضائیہ کے 6 JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں انہوں نے ان کو سلامی پیش کی۔ The nation of Pakistan welcomes His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. On behalf of the worthy Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special felicitation to our esteemed guest and present a flight of 3 JF-17 on the right wing and 3 JF-17 on left wing. It will be our honor to escort you through Pakistan's airspace. This is Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I would like to thank you for escorting me. My highest regards to the brave pilots of the Pakistan. اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے بھی برق رفتار ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کسی کو بھی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر وار کی اجازت نہیں دیں گے۔ سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ اسلام آباد سے سمیرہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے عام خطاب۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے دشمنوں کو للکار بھی دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا بھارت کسی خود فریبی یا وہم کا شکار نہ رہے۔ اگلی مرتبہ پاکستان کا جواب پہلے سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی ہماری خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ کرنے یا ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم نے ملکی دفاع کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز تمام آپریشنز کو مربوط اور ہم آہنگ کرنے کے لیے ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ اعلیٰ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے۔ سمیرہ خان، سما، اسلام آباد۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی پروقار تقریب۔ تینوں مسلح افواج کے دستے نے چیف آف ڈیفنس سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اعزازی دستے کا معائنہ کیا۔ سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز۔
आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की तरदीद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ, ऐसी कयासराइयां महज झूठ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कानून पर सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है। कानून पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत की गई। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करने के लिए आगाही मुहिम तेज करने की भी हिदायत की गई है। अभी आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर समेत पंजाब भर के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गवर्नर हाउस में अवामी मुलाकातों पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मायरा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। मायरा बताएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद, राना फारूक सईद और तनवीर अशरफ कायरा जो है, इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का ओल्ड एयरपोर्ट पर जो है वो इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की आमद के पेश नज़र गवर्नर हाउस में अवामी मुलाकातों पर 3 रोज़ा पाबंदी जो है वो भी आयद कर दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर समेत पंजाब भर के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और इसी 3 रोज के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ इजलास की तकरीबन। शुक्रिया तफसील के लिए। अब आपको बताएं, नून लीग के तारिक फजल चौधरी और पीटीआई के जुनेद अकबर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। जुनेद अकबर ने क्या शिकवा किया और तारिक फजल चौधरी ने उन्हें क्या मशवरा दिया, आइए जानते हैं। यहाँ मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे हैं, फोरम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर, इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़ा ठीक करेंगे। DGISPR ने जो कहा सबूतों की बुनियाद पर कहा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं इदारों पर हमला होगा तो इदारे ही जवाब देंगे। जहनी मरीज के साथ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ आज़ादी इजहार राय नहीं, ऐसे जुर्म की आइन में सजा वाज़ेह है। DGISPR को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सबूतों के ऊपर और वो इन्फॉर्मेशन हर तरह के एविडेंस के साथ जुड़ी हुई होती है। आज़ादी राय की तफरीक मुल्क दुश्मनी और कौमी सलामती के साथ करनी पड़ेगी और उसकी आइन के अंदर बहुत वाज़ेह सजा लिखी हुई है। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सजा होगी जो आइन में दर्ज है। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस तरह का हर अनासर से के साथ उसी तरह निपटा जाएगा जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ निपटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट ना होने से बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI अपने उम्मीदवार नामजद नहीं कर सकेगी। अगर एक पार्टी अपने उम्मीदवार की नामजदगी ना कर सके तो ऐसी जमात को हमने क्या करना है। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पार्टियों पर पाबंदी के बजाय दानिशमंदाना सोच इख्तियार करने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोचा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब हम नॉमिनेट नहीं कर सके अपने कैंडिडेट को बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट में। वहाँ हमने सुन्नी इत्तेहाद को इस्तेमाल किया। पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए और सेंसिबल अप्रोच यही है कि इनफ इज़ इनफ। अगर 2 साल बाद जो हम इस मुकाम पे पहुँच गए थे, अगर अभी से दोबारा वो मुकाम शुरू हो जाए जो 9 मई को था, मैं कहता हूँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा मुल्क के लिए, कौम के लिए। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हालात बेहतर हो, वो लोग जो इसकी बेनिफिशरी है, और वो लोग नहीं चाहते कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएं। कुछ ऐसे फार्म 47 वाले हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये बेहतरी की तरफ जाए। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी PTI की फैमिली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रही है। वो अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहा। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरियत चलती रहे। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत जो है वो आपके मुल्क के हमेशा खिलाफ रहा है और वो PTI को माजी में फंड्स भी करता रहा है, तो उधर जाके आप इंटरव्यूज दे रहे हैं और अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ जो है वो गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रिवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइंस क्रॉस ना करे। अभी तो उनके मेन केसेस शुरू ही नहीं हुए, उस पर अगर वो अपने मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ इस तरीके की घिनौनी साजिशें करेगा, इस तरीके के जो है वो अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की मीडिया के जरिए या गैर मुल्की अपने हैंडलर्स के जरिए या लॉबिस्ट के जरिए
साजिश करेगा तो उसकी मजम्मत करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पेश की। कहते हैं अफगानिस्तान और भारत के साथ बॉर्डर के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जान के नजराने पेश कर रही हैं। सियासी रहनुमा के अहले खाना का भारतीय चैनल्स पर गलत बयानी करना बाइस शर्म है। रेजोल्यूशन लाने की वजह क्यों हुई? मसला ये है कि यहाँ पर हर चीज़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल दी जाती है। पॉलिटिकल जो फैमिलीज़ हैं वो अगर हमारे मुखालिफ मुल्कों को, उनके चैनल्स को इस किस्म के एक 22 किस्म के बयानात देंगे, एक झूठ पर मबनी बयानात देंगे, तो वो बहुत बुरी बात है। बेहतर ये होगा कि चीज़ें विद इन द डोमेन रहें। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी पॉलिटिकल रिजीम में रहते हुए अपने काम करें। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की 80% से ज़ायद आबादी पीने के साफ पानी से महरूम होने का इंकशाफ। पाकिस्तान को पानी के शदीद बहरान का सामना, ज़खायर में तेजी से कमी जारी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ लिखा है। देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, दुनिया के 41% जो फ्लड्स हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खराजात में 40% कमी का सामना है। सालाना $150 अरब का फंडिंग गैप है जो कि वाटर सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया गया है। पाकिस्तान में पानी के शदीद बहरान का सामना है, ज़खायर में तेजी से कमी आ रही है। रिपोर्ट का ये कहना है कि 80% आबादी को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। पाकिस्तान में फीकस पानी दस्तियाबी 3500 से कम होकर 1100 मकाब मीटर रह गई है और ज़ेर ज़मीन पानी के बेदराग इस्तेमाल से ठीक है शकील, आपका शुक्रिया। और खबर ये है, पाकिस्तान सुपर लीग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाने का अज़्म। कहा यह काम कोई मुश्किल नहीं, मुझे पूरा यकीन है लीग को नंबर 1 बनाएंगे। लॉर्ड्स में पीएसएल तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, सरमायाकारों को बता दूं हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर और मुल्क भर के दीगर ग्राउंड पर भी पैसा लगा रहे हैं, आइए आप इन्वेस्ट करें। I don't think so it's a difficult task. And I'm very much sure we will make this league a world's number 1 league. I will tell one thing to the investors that we are not spending only money on the infrastructure, but also on the high performance centers. We have just done Qaddafi Stadium. We are building a new stadium in Islamabad, inshallah, one of the best stadium in Pakistan. Half of the Karachi renovation is already done, and half of the Karachi renovation will be done after this PSL. We are targeting Abbottabad. We are taking over Muzaffarabad Stadium also, which will be one of the best stadium inshallah very soon. शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि अगर बाबर आजम वापस आ सकते हैं तो मोहम्मद रिजवान की भी T20 टीम में जगह बनती है। बार बार बैटिंग ऑर्डर तब्दील करके फखर जमान के साथ नाइंसाफी हो रही है। प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप करीब है, तजुर्बात का ज्यादा वक्त नहीं। अगर मेरी नजर में कोई मैच विनर है वो है फखर जमान, तो मैं समझता हूँ कि उस लड़के के साथ तो हम ऑनेस्टली बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आपका ओपनर अभी एक सबजादा फरहान एक प्लेयर है जो थोड़ा सा लग रहा है कि कंसिस्टेंट है। साइम अयूब आपका बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। ये तो किस्मत अच्छी है कि साइम अयूब साथ में थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, जिसकी वजह से आज वो टीम में जगह बनाए रखा हुआ है। आपने बीच में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छा किया। मैं खुद कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया, लड़कों को बिठाया, खिलाया, ऊपर नीचे चीजें की। मेरे ख्याल में अब बस कर देना चाहिए अब, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप। अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है, अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्लो ओवर रेट पर भारतीय टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया है। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम कराए थे।